हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। वी स्टडीड टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, नॉट पैरेललोग्राम, वी स्टडीड टाइप्स ऑफ quadrilaterals and we studied all the types of quadrilaterals. It's still on my other page. If you want to glimpse, I can show you quick here. This is parallelogram. Opposite sides are parallel and equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, adjacent angles are supplementary. Here's the other one. You have rectangle. Okay, let me zoom it. Yeah, so rectangle, opposite sides are equal and parallel, all the angles are right angle, diagonals are equal and they bisect each other. Then comes rhombus, all the sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals to bisect each other perpendicularly. Then comes square, all the sides are equal, opposite sides are parallel, all the angles are 90-degree, diagonals are equal and bisect each other perpendicularly. And then came trapezium, one pair of opposite sides are parallel. Apart from that, I asked you guys, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझे एक फिगर बताओ जिस जो मैंने इसमें नहीं डाला है. ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें भी नहीं बताऊंगा. सो दिस इज क्लास 9th exercise 8.1. We are doing quadrilateral. This the first question: if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Now, to clear our view, I always tell all my students that do one thing. अगर हमें ये पूछा है that we need to prove that a parallelogram is a rectangle, then straight away draw a rectangle. इससे आपका दिमाग क्लियर होगा, द परसेप्शन विल बी क्लियर. ओके, सो हियर आई मेड अ रेक्टेंगल. दे हैव गिवन द डायगोनल्स आर इक्वल. मैंने डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दिए हैं. आइए इसको नेम करते हैं. ए बी सी डी एंड लेट दिस पॉइंट ओ. ना ओ इज़ माई फेवरेट. बाकी कोई रेसिज्म नहीं है. अगर आप पी क्यू आर एस से जाना चाहते हो आप बिल्कुल जा सकते हो. अगर आप कोई और अल्फ़ाबेट्स जो आपको लगता है इज़ मोर सूटेबल, यू कैन ऑलवेज गो विद दैट. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग the way to solve it. So first we'll write to prove. Yeah, here we need to prove that A, B, C, D is a rectangle. Yeah, we need to prove that ABCD is a rectangle. For that we will write what is given to us. अच्छा भाई, जिसको ये डिज़ाइन समझ में ना आए, ये जी है. ठीक है. सो वी नीड टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. गिवन में उन्होंने खाली हमें दो चीज़ें दे के रखी हैं, दैट ए बी सी डी इज अ parallelogram and they have given that AC is equals to BD. अब इन्होंने हमें दिया है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम का मतलब है, भाई लोग जिसको भी, भाई लोग और बहन लोग जिसको भी दिक्कत है, डी अलग है, एम और डी गलती से जुड़ गया है, प्लीज़ इसके लिए गाली मत देना. ओके, सो they have given that AC is equals to BD. They have given that ABCD is a parallelogram. मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ स्पेस ही बना देता हूँ ताकि जो लोग बीच से देखना स्टार्ट करें उनको कोई दिक्कत ना हो. Yeah, this is D. Okay? Yeah, now more clear. ठीक है. So अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इसका प्रूफ करने के लिए कि ये रेक्टेंगल है, हमें एक ही चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी. कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे एंड ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा दैट ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है. क्योंकि इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज में वी हैव क्लियर्ड वन थिंग, दैट all the rectangles are parallelogram, but all the parallelograms are not rectangle. And to prove a parallelogram, the major difference between parallelogram and rectangle was the diagonals are equal, and second thing was that the angles are 90 degree. Over here they have given us that diagonals तो equal हैं, but क्या एंगल इक्वल है वो नहीं दिया हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट. ओके, सो फॉर दैट विल टेक टू ट्रायंगल्स. विल टेक इन ट्रायंगल
ACD and triangle BDC. AD equals to BC, and we'll write the reason over here. Reason लिखना बहुत important है. It depends upon your teacher, but हाँ normally marks काटे जाते हैं. Opposite sides of parallelogram. Yeah. Then AC equals to BD. Now this thing is given. यहाँ देख सकते हैं हम AC equals to BD हमें already दिया हुआ है. Okay. Third thing we'll write CD equals to CD, which is a common side in these two triangles. अच्छा, जिसको भी triangle ना दिख रहे हो, just to clear in your mind, हमारे पास दो triangles हैं. एक triangle हमारा ये है, एक triangle हमारा ये है. It's just to clear your conscience. Okay? हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं. हमने लिया है ADC और हमने लिया है BCD, या फिर जो मैंने लिखा है ACD BDC. करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको भी करस्पॉन्डेंस नहीं पता प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो. इसके लिए जब मैं ट्रायंगल्स करवाऊंगा उस टाइम पे मैं एकदम क्लियर करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में correspondence is very important. Okay, so I'm continuing. CD equals to CD, therefore triangle ACD is congruent to triangle BDC by SSS rule. Now, काफ़ी लोगों को स्कूल में पढ़ा रहे होंगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, काफ़ी लोगों को रूल पढ़ा रहे होंगे. बोथ आर करेक्ट. जिसको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखना है प्लीज़ गो विद दैट. आई एम गोइंग विथ रूल. बोथ आर करेक्ट, सो नो प्रॉब्लम ओवर देयर. या therefore angle D is equals to angle C. now angle D equals to angle C लिखेंगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाएं. यहाँ हो सकता है they can deduct your marks because there are two angles over here. The first is angle ADC and the second is angle BDC. yeah, same goes with angle C over here. You have two angle C's over here, angle BCD and angle ACD. तो भगवान के लिए एंगल D इक्वल टू एंगल C मत लिखिए. ओके, हम पूरा नाम लिखेंगे. ये हम नहीं लिखेंगे. प्लीज डोंट राइट दिस. देर इज़ अ पॉइंट ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स. जो टीचर भी आगे पढ़ाने वाले हैं प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करिएगा दैट प्लीज़ डोंट राइट एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी. इसकी वजह से मार्क्स कटेंगे. आई एम टेलिंग दिस ओनली इन द फर्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद मैं ये नहीं बताऊंगा. ओके, सो जस्ट क्लियर इट. एंगल डी इक्वल टू एंगल सी मत लिखिएगा. इसके दो मीनिंग है एंड यू नीड टू बी क्लियर. ओके, सो वी विल राइट देयरफॉर एंगल ADC equals angle BCD and we'll write the reason CPCT. Now what do you mean by CPCT? CPCT means corresponding part of congruent triangle. ये पार्ट भी मैं आपको जब ट्रायंगल चैप्टर करेंगे तब बताऊंगा, या फिर जिन लोगों ने ट्रायंगल कर लिया होगा उनको ये ऑलरेडी पता होगा. सितंबर जा चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है. ट्रायंगल चैप्टर सबके स्कूल में ऑलमोस्ट हो ही गया होगा. Yep, we are done with triangle chapter. But not in my channel. I am going to post triangle soon. Yeah. So now with this thing, also we know that angle ADC plus angle BCD equals to 180 degree. Oh, I forgot. Let's put this as equation 1. And for this we will write adjacent angle of पैरेललोग्राम. या सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ADC प्लस एंगल ADC इक्वल्स 180 डिग्री टू एंगल ADC इक्वल्स 180 डिग्री एंगल ADC इक्वल्स टू 180/2. थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे. Therefore,
एंगल ADC इक्वल्स 90 डिग्रीज, या 90 आ गया। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूफ किया हुआ था एज एंगल ADC इक्वल्स एंगल BCD, देयरफॉर एंगल ADC equals angle ABD, and angle BCD equals angle BAD equals 90 degree, and we'll write the reason: opposite angles of पैरेललोग्राम। अगेन आई एम सेइंग दैट अगर आपको स्कूल में रीजंस नहीं लिखवा रहे हैं आप लोग मत लिखिए, बट बोर्ड सजेस्ट दैट आपको रीजन लिखने पड़ेंगे, या देयरफॉर नहीं, विल नॉट राइट देयरफॉर, सिंस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड diagonals are equal, therefore ABCD is a rectangle. Yep, we prove that it is a rectangle. मैं आपको फिर से बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट के लिए तैयार करवा दूं। ये प्रूफ है, जिसको भी प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्टिंग से जिसको देखना है ये रहा, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल गिवन, फिर प्रूफ, एंड फिर ये आगे का पार्ट। ओके, मैंने पॉज कर दिया थोड़ी देर के लिए, अब आप लोग इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन दे देता हूँ इस सम का। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ABCD को एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। मैंने वो गलती नहीं की पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। मैंने गिवन लिख दिया ABCD एक पैरेललोग्राम है, सो दैट इसमें पैरेललोग्राम के सारे लॉज लगेंगे। AC इक्वल्स टू BD हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। इफ यू रीड द क्वेश्चन इट्स मेंशन ओवर देयर, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। फिर मैंने प्रूफ लिया, मैंने लिखा ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC, ये दोनों हमने सपोज किया। मैंने लिखा AD इक्वल्स टू BC है, मैंने लिखा AC इक्वल्स टू BD है, मैंने लिखा CD इक्वल्स टू CD है, जो कि कॉमन है। इसीलिए ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BDC के SSS रूल से। ये हमें नहीं लिखना है, इसीलिए मेंशन है, प्लीज़ ये मत लिखिएगा, ये गलत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंगल D इक्वल टू एंगल C आप नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने पूरा लिखा एंगल ADC इक्वल्स टू BCD CPCD। ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से हमने एंगल ADC प्लस एंगल BCD को 180 लिख दिया, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बाय यूजिंग दैट रूल हम की द प्रॉपर्टी विच स्टेट्स दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, I've written this. After that I added them, I got angle ADC equals to 180 by 2, and therefore I got angle ADC equals to 90 degree. Once I got that, I've shown, this is just a showing part where I've shown that all four angles are 90 degree by the rules as opposite angles of parallelogram. Therefore, since all the angles are 90 degree and diagonals are equal, therefore ABCD is a rectangle. Okay, this is the first question. Now comes the second question. Show that the diagonal of a square are equal and they bisect each other at right angles. So हमने पीछे स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी देखी थी जहाँ पे all the sides were equal and all the angles are 90 degree and the diagonals are equal and bisect each other perpendicularly. Now they are asking that हमें दिखाना है that diagonals of a square are equal. हमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है
that diagonals are equal and they bisect each other perpendicularly. Okay, so now we are going to prove it. Let me take my iPad over here. दिख रहा होगा सबको अभी, है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा. इट्स अ रफ डायग्राम, है ना? सो सर ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, ऐसा या जो भी आप लोग मुझे बुलाएं. Yeah, so I made a square. Let's name it A, B, C, D. Now let's make the diagonal. Yeah, so we made the diagonal also. Yeah, and let's make the diagonal O. भाई कोई रेसिज्म नहीं है, किसी को PQR नाम देना तो बिल्कुल दे सकता है ना? No grudge with PQRS or any other alphabet which I know. बंद मत हो यार. Okay, so let's start the proof. Question number 2. So to prove AC is equals to show that the diagonals of a square are equal and bisect each other. So we need to prove AC is equals to BD. We need to prove that AC is perpendicular to BD, and we need to prove that AO is equals to OC and OB is equals to OD. Yeah, and हमें given है ABCD is a square. Yeah, with me till now. हालांकि भी कुछ करवाया नहीं, but still ABCD is a square. Yeah. So let's start the proof. Proof में हमारे पास ऐसा सीन है कि we need to take some triangles over here. हम लोग कुछ triangles लेंगे और हम लोग proof करेंगे that AB ये जो भी हमें प्रूफ करना है. सबसे पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं दैट डायगोनल्स इक्वल है. सो डायगोनल्स इक्वल है प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC हम लिख देंगे AD इक्वल्स टू BC. हम लिख देंगे एंगल D इक्वल्स टू O, मैं ही गलती कर रहा हूँ, एंगल ADC इक्वल्स एंगल BCD, और हम लिख देंगे CD इक्वल्स टू CD. नाउ दिस इज कॉमन, ये कॉमन साइड है, CD दोनों ट्रायंगल्स पे लाई कर रहा है. ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एंड स्क्वायर्स में तो क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं. सो वी आर गोइंग विद दैट. या सो दिस प्रूव्स, मैं नोटबुक सीधी कर लेता हूँ, आई एम सॉरी मैं थोड़ा टेढ़ा लिखता हूँ, दैट इज़ वाई द नोटबुक वॉज टेढ़ा. सो देयरफॉर triangle ACD is congruent to triangle BDC by SAS rule. Yeah, therefore AC equals BD CPCT. ये हमारा फर्स्ट चीज़ प्रूव हो गई जो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे थे, दैट वाज AC equals to BD. अब हम प्रूफ करेंगे दैट द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. वो पहले प्रूफ करके एंड देन हम परपेंडिकुलर प्रूफ करने जाएंगे. मतलब मैं वैसे कर रहा हूँ, अगर किसी के पास और इजी मेथड है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए. इन ट्रायंगल
AOD and triangle BOC. Okay, so ठीक है, in triangle AOD and triangle BOC, angle DAO equals angle OCB, angle ODA equals angle OBC, and the reason is alternate angle. एंड AD इक्वल्स टू BC तो होगा ही क्योंकि ये स्क्वायर है, या therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC by ASA rule. Therefore we prove that OA equals OC and OB equals OD, and we'll write the reason CPCT. या सो हमने ये भी प्रूव कर दिया that diagonals are bisecting each other. Now to prove that ये perpendicular है, so perpendicular proof करने के लिए दो तरीके हैं, एक से तो 90 प्रूफ करके दूसरा भी 90 हो जाएगा, एंड सिमिलरली लिख के हम कर सकते हैं. सेकेंड मैथड इज टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वर्टिकली अपोजिट से 90 हो जाएंगे. सो मैंने पहले भी कहा था आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ वेज, सो लेट मी टेल यू द बोथ वेज. सो फर्स्ट मैथड, दिस इज जस्ट टू प्रूव दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BD. ओके, फर्स्ट मैथड है, मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ वो, कि हम ले लेंगे इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOA. AB इक्वल्स टू BC गिवन है क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, सो उधर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. BO इक्वल्स टू BO कॉमन साइड है, और लास्ट AO इक्वल्स टू OC, ये जस्ट हमने अभी प्रूव किया है, सो वी विल राइट प्रूव्ड अबव. अच्छा, सम ऑफ द टीचर्स डोंट लाइक प्रूव्ड अबव, सो आप उनसे पूछ लीजिएगा दैट वो क्या लिखवाना चाहते हैं. So we will write, means you have to write accordingly. Yeah. Okay, let me move my iPad. iPad रख देते हैं यहाँ पे. iPad हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए. Yeah. Therefore, triangle BOC is congruent. ओके, मेरा बुक टेढ़ा हो गया. Therefore triangle BOC is congruent to triangle BOA by SSS. Therefore we will write that triangle BOC is congruent to triangle BOA. Therefore angle AOB equals angle BOC. Reason we will write CPCT. Therefore we will write angle AOB plus angle BOC equals 180. We will write the reason linear pair. Therefore now we will write angle AOB plus angle AOB equals 180. यहाँ पे लिख देते हैं as angle AOB. My pen is not working. Let's keep this away. I think the refill is gone. Let's take another blue pen. AOB equals angle BOC. We'll write therefore
टू एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री। यहाँ तक आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। सो वी विल राइट, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं उसको, या वी विल राइट therefore angle AOB equals 180 by 2, so angle AOB equals 90 degree. Therefore we will write angle AOB equals angle BOC equals 90 degree. Therefore no, since angle AOB equals angle COD, angle BOC equals angle AOD. Vertically opposite angle. Therefore angle AOB equals angle COD equals angle BOC equals angle AOD equals 90 degree. Therefore AC is perpendicular to BD. Now this is one of the methods to prove that. एक दूसरा मेथड है जो लिखने में थोड़ा छोटा रहेगा, मुझे नहीं पता दैट वेदर योर टीचर्स विल अलाउ दैट और नॉट, बट ऑब्वियसली वो लिखने में थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस, एंड दैट मेथड इज कि हम ऐसा लिख दें, दिस इज अ बिग और, या सेकेंड मेथड इज कि हम ऐसा लिख दें दैट इन ट्रायंगल BOC, सिंस BOC में since BO is equals to OC, therefore angle OBC equals angle OCB. यहाँ पे रीज़न लिख देंगे angles opposite to equal sides, therefore in triangle BOC by angle sum property, angle BOC plus angle OBC plus angle OCB equals 180 degree. So angle BOC plus (45) plus 45 equals 180. So angle BOC equals to 90 degree. Therefore angle BOC equals angle AOD equals 90 degree. Similarly angle AOB equals 90 degree from triangle AOB. Therefore angle AOB equals angle COD equals 90 degree. Therefore let this be equation 1, let this be equation 2. From equation 1 and equation 2, AB is perpendicular to CD. अब आपकी चॉइस है आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखा के एंड आई विल पॉज फॉर सम टाइम। आप स्क्रीनशॉट लेके यू कैन कॉपी इट आफ्टरवर्ड्स। Okay, since this video is too long, I'm ending over here. These are only 2 questions. The rest of our questions will come in the next episode. Thank you for watching. Please share, subscribe, and like. Thank you.
અને જેટલા સ્ટુડન્ટ્સને આ વિડીયો ગુજરાતીમાં જોઈએ પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો સો દેટ જે નેક્સ્ટ વીકમાં એપિસોડ્સ આવશે એમાં હું તમને ગુજરાતીમાં પણ એક્સપ્લેન કરીશ. અને જે ગુજરાતી મીડિયમવાળા છોકરાઓ છે, જે છોકરાઓ ગુજરાત બોર્ડમાં છે અને કાં તો જે ગુજરાતમાં રહે છે અને એ લોકો ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેનેશન જોઈએ, પ્લીઝ કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહો સો દેટ આઈ કેન સ્ટાર્ટ ઇન ગુજરાતી. ઓકે, થેન્ક યુ.